हाँ जी, प्लस 2 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 20 ਕੁਛ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਰੀਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। Why two electric field line cannot intersect each other? If they did, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਦੋ ਲਾਈਨ ਆਪਸ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, देयर वुड बी टू डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ? 2 ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ 2 ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਮਸਟ ਹੈਵ ਅ ਯੂਨੀਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਵਾਈ ਟੂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ कैन नॉट इंटरसैक्ट ईच अदर। कि 2 मैगनेटिक फील्ड लाइन इंटरसैक्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि 2 डायरेक्शन शो करेंगी, है ना। सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इफ दे इंटरसेक्टिंग दे वुड हैव 2 डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगला आंदा व्हाट आर पैरामैग्नेटिक सबस्टांस, गिव एग्जांपल। तो बच्चे पैरामैग्नेटिक सबस्टांस किहड़े हुंदे ने? पैरामैग्नेटिक सबस्टांस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, दे हैव अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन, ठीक है। जो पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन भी होंगे अनपेयर्ड होंगे ने। एग्जाम्पल आ जाएगी एलमीनीयम, प्लैटिनम ते ऑक्सीजन, ठीक है। राइट अ 2 यूजेस ऑफ एक्सरे, एक्सरे के 2 यूज पढ़ने ने। पहला आ जाएगा मैडिकल डायग्नोसिस के, जिमें बोन्स के कोई फ्रैक्चर वगैरह हो उत्थे आपां यूज करते हैं। इंडस्ट्रीयल इंस्पैक्शन के जिमें डिटैक्टिंग फ्लॉज इन मैटल्स, है ना, जिमें मैटल की वैल्डिंग वगैरह होंगी है, वो कोई मतलब क्रैक वगैरह तो नहीं रह गया, वो भी एक्सरे का यूज किया जाता है। वट इज इंपीडेंस, वट आर इट्स यूनिट? इंपीडेंस इज अ टोटल ऑपोजिशन टू करंट फ्लो इन AC सर्किट इंक्लूडिंग रजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। तो ये SI यूनिट की होंगे ने साढ़े कोल ओहम होंगे ने, क्योंकि ये भी की है एक तरीके की रजिस्टेंस ही है। उस तो बाद वट इज इंटरनल रजिस्टेंस, ऑन वट फैक्टर डज इट्स वैल्यू डिपेंड? द इंटरनल resistance is the resistance offered by electrolyte and electrode within the cell to flow of the current। ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਰੰਟ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫੈਕਟਰਸ ਔਨ ਵਟ ਫੈਕਟਰ ਡਸ ਇਟਸ ਵੈਲਿਊ ਡਿਪੈਂਡ? ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। What are ohmic and non-ohmic device? Ohmic devices obey Ohm's law, V is equal to IR की ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ Ohm's law ਹੁੰਦਾ। ohmic device Ohm's law ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ and have linear voltage current relationship। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ V versus I ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨॉन ohmic device does not obey Ohm's law, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਓਡ ਆ ਗਿਆ। ਨॉन ohmic device ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਡਾਇਓਡ ਤੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ why is work done in moving a test charge on equipotential surface is 0? एन इक्विपोटेंशियल सरफेस है सेम पोटेंशियल ऑल द पॉइंट। इक्विपोटेंशियल सरफेस की होंगी है जिस पोटेंशियल क्या होता है सारे पॉइंट से सेम रहता है। सिंस वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, क्योंकि सारी जगह पे सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। द वर्क डन इज 0। नैक्सट आ जाता बच्चे साढ़े को वट इज लॉरेंट्ज फोर्स, है ना। लॉरेंट्ज फोर्स की होंगी है? लॉरेंट्ज फोर्स इज अ कंबीनेशन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज पार्टिकल मूविंग इन इलैक्ट्रिक फील्ड एंड इन मैग्नेटिक फील्ड। ਤੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੌਰੈਂਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? Q ਇੰਟੂ E ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਐਗਜ਼ਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? QV क्रॉस क्या होंगी है? B होंगी है, ठीक है जी। क्यों अगर कॉमन निकाल लोगे की आ जाऊगा E वैक्टर प्लस B वैक्टर क्रॉस विद B वैक्टर, ठीक है जी। इस तरीके रिप्रजेंटेशन तुसीं दे के आनी है पेपर के अंदर। वाई इज कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लैमिनेटेड क्यों की जाती है? ताकि एडिट करंट रिड्यूस किए जान, विच मिनीमाइज एनर्जी लॉस ड्यू टू हीटिंग। अगर आ जाओ वाई डज कैपेसिटर ब्लॉक DC इन DC सर्किट आफ्टर कैपेसिटर इज फुली चार्ज। और कैपेसिटर क्या फुली चार्ज होंगे, नो मोर करंट फ्लोज एज अ पोटेंशियल अक्रॉस इट इक्वल टू द सोर्स वोल्टेज। तो मतलब जो पोटेंशियल की होंगे इक्वल होंगे सोर्स वोल्टेज के, फिर करंट कोई भी होर फ्लो नहीं करता। तो एक ओपन सर्किट की तरह उन्हें बिहेव करता, कि तरह बिहेव करन लग जाता, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता, जिहदे करके कि हुण कैपेसिटर DC नूं की करन लग जाता? ब्लॉक करन लग जाता, क्योंकि ओपन सर्किट के अंदर सानूं पता ही है कि करंट फ्लो नहीं करता। वट डू यू मीन बाय EMI स्ट्रेट लेंस लॉ? EMI की हो गया? इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। It is a disruption in electronic device caused by electromagnetic field. Lenz law. The direction of induced current is such that it opposes the change that it produce, है ना। ये चेन नूं की करता? अपोज करता। तुसीं आ देखिया होएगा, तुहाडे स्कूल च डिस्कस कराया होगा। जिवें मान लो एक मैं कॉइल ले ली, इत्थों मैं की करके लै रहा मैगनेट ले लिया,
ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਨੂੰ ਬਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਥ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਫਾਰ ਅਵੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਸਚ ਦੈਟ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਦਾ ਚੇਂਜ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਫਟਾਫਟ ਤੋਂ, ਇੰਡਕਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਐਂਡ ਕੈਪੈਸਿਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ। इंडक्टिव रिएक्शन की होती है एक्सल अपोजिशन टू एसी करंट फ्लो ड्यू टू एन इंडक्टर एक्सल, ये की होती है W इंटू L के बराबर। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की होती है जी कैपेसिटर विच होती है XC नाल रिप्रेजेंट करते हैं ओपोजिशन टू AC करंट फ्लो ड्यू टू कैपेसिटर XC नूं आपां किवें रिप्रेजेंट करते हैं 1/ω/C। ठीक है, दोनों की यूनिट की है ओम ने, क्योंकि दोनों ही एक ही ने रेजिस्टेंस ने। डिफाइन वर्क फंक्शन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजैक्ट इलैक्ट्रॉन फ्रॉम मैटल सरफेस, मैटल सरफेस तो किसी इलैक्ट्रॉन को इजैक्ट करने लई जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उन्होंने आपां बोलते हैं वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू इजैक्ट इलैक्ट्रॉन फ्रॉम मैटल सरफेस, द मिनिमम जी फ्रीक्वेंसी होंगी उन्होंने बोल देंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है विच फोटोन इज मोर एनर्जेटिक, येलो और ग्रीन। तो पूछ रहे हैं कि फोटोन है मोर एनर्जेटिक है, येलो वाला या फिर ग्रीन वाला। ग्रीन लाइट हैज़ हायर फ्रीक्वेंसी दैन येलो, ग्रीन की जी फ्रीक्वेंसी होगी है हायर होंगी है येलो नालों, सो ग्रीन फोटोन इज मोर एनर्जेटिक। मोर द है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होंगी है उसकी एनर्जी भी की होंगी है ज़्यादा होंगी है। उस तो बाद वट इज फोटोन, आ फोटोन इज अ क्वांटम ऑफ इलैक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। प्रॉपर्टी यदि प्रॉपर्टीज की है, रेस्ट मास है कि होंगे 0 होंगे, ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड नाल ट्रैवल करता है। एनर्जी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी ई कि बराबर होंगी है H इंटू न्यू दे, इतने F का मतलब फ्रीक्वेंसी है। एग्जिबिट्स वे पार्टिकल ड्यूएलिटी। उस तो बाद बोहर सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन में एक्सप्लेन करना है। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट वेयर देयर एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, है ना। ये आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके सी, h/2 पाई का जिथे इंटीग्रल मल्टीपल होंगे उस ऑर्बिट के अंदर की करता साडा इलैक्ट्रॉन मूव करता है। नेम प्रॉपर्टीज, नेम 4 प्रॉपर्टीज। न्यूक्लियर फोर्स प्रॉपर्टी पढ़नी असी, स्ट्रोंग अट्रैक्टिव फोर्स होंगी है। ठीक है जी, शॉर्ट रेट होंगी है, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज तो की होंगी है, इंडिपेंडेंट होंगी है। ठीक है, जिमें इलैक्ट्रॉन के प्रोटोन को जी न्यूक्लियस अंदर बाउंड करके रखती है वो न्यूक्लियर फोर्स ही होंगी है। उस तो बाद आइसोबार, आइसोटोन ते आइसोटोप्स एग्जाम्पल लिखनी है। आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो पर डिफरेंट की हो, न्यूट्रॉन नंबर, है ना। न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है, यानी मास नंबर की है डिफरेंट है। एग्जाम्पल किया गया इतने कार्बन का आ गया। ठीक है जी, 666 लिख लेना। एटॉमिक नंबर की है सेम है बट मास नंबर दोनों का की है डिफरेंट है। आइसोबार सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मास नंबर सेम हो एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। ठीक है, इतने की आ गया 40 मास नंबर सेम है। आर्गन तो पोटाशियम का देख लेना, आई थिंक पोटाशियम का 19 सीगा, आर्गन का चैक कर लो पता नहीं कितना। ओके, उस तो बाद आइसोटोन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो बट डिफरेंट नंबर ऑफ की होन प्रोटोन। एग्जाम्पल आ गया पोटाशियम तो कैल्शियम का 40-41। ठीक है जी, न्यूट्रॉन का नंबर सेम है ताही मास नंबर डिफरेंट है, तो प्रोटोन की गिनती इन्होंने की होगी डिफरेंट होएगी। अगला सीगा बेसिक प्रॉपर्टी हो थले एटॉमिक नंबर लिख लेना। कैल्शियम का 20 है, पोटाशियम का 19 के करीब होएगा। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलैक्ट्रिकल चार्ज एडिटिव इन नेचर, टोटल चार्ज इज अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज। क्वांटाइज चार्ज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलीमेंटरी चार्ज, यानी क्वांटाइज क्यू इजिकल टू की होंगे N इंटू ई होंगे, यानी N के मल्टीपल के ही चार्ज होएगा। कंजरवेशन, द टोटल चार्ज इज एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कंजर्वड, तो टोटल चार्ज हमेशा की रहा साढ़े कोल कंजर्वड रहा है। ठीक है, आज डे मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन सीगे, इन्होंने एक बार खत्म करो। एक मॉर्निंग के अंदर थोड़े वास्ते एक मैं होर वीडियो अपलोड करूँगा सवेरे 6 बजे उठ के, उस वीडियो को भी की कर लेना, रिवाइज कर लेना। तो एक क्वेश्चन जिन्हें भी ने सारे काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है थोड़े वास्ते इंपोर्टेंट रहणगे। तो हुण जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे 15 क्वेश्चन उन्होंने भी मैं थोड़ा बेस्ट सोल्यूशन के नाल प्रोवाइड कर दूंगा। उन्होंने भी मॉर्निंग जाने तो पहला जरूर एक गो थ्रू लैके जाओ। ठीक है जी, फर्स्ट टाइम चैनल पर सबसक्राइब विजिट कर रहे हो, चैनल की करके रखो, सबसक्राइब करके रखो। वीडियो वधिया लगी हो वीडियो की कर दो लाइक कर दो, अपने यारों भी शेयर कर दो, जिन्हें भी थोड़े मित्र होर देख रहे हैं वीडियो को मैक्सीमम शेयर कर दो, क्योंकि 20 क्वेश्चनों के विचों तुहानूं क्वेश्चन कल के पेपर च डेफिनेटली देखने को मिलणगे ही मिलणगे। क्लीयर हो गया। अगर PDF चाहिए होएगी तो बच्चे नीचे डिस्क्रिप्शन के WhatsApp का लिंक दिता होगा, WhatsApp वाले लिंक के उत्ते क्लिक करके तुसीं मेरे WhatsApp चैनल पर जाके लै सकते हो। अदरवाइज मैं Instagram का अपना लिंक दिता होगा, Instagram पर मैंने मैसेज कर देना, मैं मैसेज के उत्ते तुहानूं अदी पूरी PDF डायरैक्टली सेंड कर दूंगा। ठीक है जी, तो चलो जी मिलांगे नैक्सट पार्ट के नाल, नैक्सट रिवीजन के नाल। तब तक लिए चैनल को करो सबसक्राइब। ओके जी, सत श्री अकाल।